बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक cantorpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8. The chapter which is under discussion is the pollutants and their effects on environment. Up till now we have studied 3 effects of these air pollutants. These were global warming, greenhouse effect, ozone depletion. And the fourth one is acid rain. And we will discuss the formation and the consequences of acid rain on the environment and other life forms. The SLO that will be achieved through this lecture is explain the formation of acid rain and identify its consequences on living and non-living things. First of all, we'll define the acid rain. Just open your textbook at page 54 and you will find the topic 4.7 named as acid rain. So what is acid rain? Acid rain is a form of precipitation having acids: sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid. These acids mix with rain in the atmosphere and fall to the ground in various forms. For example, rain, snow, fog, hail. It is also called as acid deposition. So what did you understand from this definition of acid rain? एक तो नॉर्मल रेन होती है, ठीक है। आपको पता है कि हवा में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि नाइट्रोजन है, जैसा कि ऑक्सीजन है। ये सब गैसेस हवा में प्रेजेंट हैं। कुछ नेचुरल फिनोमेना भी होते रहते हैं हवा में, जैसा कि लाइटनिंग है। लाइटनिंग जब भी किसी कंपाउंड पे फॉल करेगी, किसी मॉलिक्यूल पे फॉल करेगी, वो उसमें एक रिएक्शन जनरेट कर देगी। लाइटनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेचुरल लाइटनिंग is a form of energy. Whenever it falls on any compound or molecule, it initiate a chemical reaction. As a result of this lightning, these molecules or compounds react with water and form acids. And these acids, when mixed with water of rain, deposit on the ground as precipitation. The other way of acids form in the air is the smoke or the pollutants present in air. You all know very well that as a result of industrial activity, the chimneys of industries release smoke that contains acids or gases such as sulfur dioxide, such as carbon dioxide, such as NOx, NOx. All these gases travel into air. The upward arrow shows that they are present in air. These gases, when mixed with water of air means rainwater, they form specific type of acids. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3। नाइट्रिक ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ मिलेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, HNO3। ये तमाम एसिड्स अलॉन्ग विद रेन वाटर, ये तमाम एसिड रेन वाटर के साथ ज़मीन पे आ जाते हैं
और जो ऐसी बारिश, ऐसी रेन या ऐसी हेलिंग, ऐसी फॉग जिसमें ये तमाम एसिड्स प्रेजेंट हों, उसे कहते हैं एसिड रेन। और इसका दूसरा नाम है एसिड डेपोजिशन। इट मे बी वेट और इट मे बी ड्राई। वेट डेपोजिशन होगी रेन की सूरत में, हेलिंग की सूरत में, और ड्राई डेपोजिशन होगी स्नो, फॉग, एटसेट्रा। The deposition can be in two ways, wet and dry deposition. Wet deposition is in the form of rain, sleet, snow and fog. Sorry, यहाँ पे fog wet deposition का हिस्सा है। This form of acid deposition is more common. Dry deposition happens when the gases and dry dust pollutants fall on the ground, on buildings, vehicles, gardens and on trees. अब dry deposition क्या होगी? जब ये gases डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर डिपॉजिट हो जाती हैं बिल्डिंग्स पे, व्हीकल्स पे, गार्डन्स पे और ट्रीज पे डस्ट के फॉर्म में। सो उस सूरत में भी ये एसिड रेन ही कहलाएगी, लेकिन ये ड्राई डेपोजिशन है एसिड रेन की। अब देखते हैं कि एसिड रेन बनती कैसे है। Acid rain is formed when certain air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the atmosphere, and these are released through power generation activities, cement manufacturing, and many other industrial activities. इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की कंबस्टन एक्टिविटीज, उस सूरत में भी सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज होती हैं। जब भी चिमनी से धुआं रिलीज होगा किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, फैक्ट्री से, तो इनमें से कोई भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट हो सकता है। दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड्स। अब चूंकि ये गैसेस हैं तो विंड के थ्रू ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। दीज एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स केमिकली रिएक्ट with water to form sulfuric acid and nitric acid respectively. These acids after mixing with water vapors fall on the ground as rain. और ये सारा फिनोमेना हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ कंबाइन करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, और नाइट्रिक ऑक्साइड्स जब H2O के साथ मिलेंगे तो ये HNO3 बनाएंगी, जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसके साथ X का मतलब है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टिंग। सोर्स क्या है अब इन गैसेस का? We have already studied in previous topic that about the sources of NOx and SOx that cause acid rain. Volcanoes are major natural emitting source. Natural source इनका है volcanoes for these two pollutants. Coal power plants are the major man-made sources for producing and releasing these air pollutants. इसके अलावा मैन मेड सोर्सेज में कोल पावर जनरेशन एक्टिविटीज, जिसमें कोल को बर्न किया जाता है। यूजुअली दीज पावर प्लांट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज बट द विंड्स ब्लो अवे दीज पोल्यूटेंट्स ओवर फार अवे प्लेसेस। एसिड रेन इज देयरफॉर अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है। हवा के साथ ये पोल्यूटेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और एक वास्ट एरिया को कवर करके उसे पोल्यूट करते हैं। एसिड रेन इज देयरफॉर अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी। इट इज़ नॉट मियरली एन इशू फॉर दोज हु लिव क्लोजर टू दीज एरियाज। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं फैक्ट्री की विसिनिटी में रहते हो, बल्कि आप कहीं भी रहते हो, एसिड रेन आपको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि एसिड रेन के जो पोल्यूटेंट्स हैं, एसिड रेन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं। अब एसिडिटी होती कितनी है इसमें? अगर हम कह रहे हैं कि ये एसिड रेन है तो इसकी कोई वैल्यू भी होगी, कोई मेजरमेंट भी होगी कि ये किस हद तक एसिडिक है। तो इसके लिए एक स्केल हम यूज़ करते हैं जिसे pH स्केल कहते हैं, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
पीएच रेंज, पीएच स्केल वो स्केल है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ किस हद तक एसिडिक हो सकती है। इसकी एसिडिक रेंज है 0 to 6, जो 0 हाईएस्ट वैल्यू है एसिडिटी में, और 6 लोएस्ट एसिडिटी को शो करता है। अब 0 से 6 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एसिडिटी इस तरफ को इंक्रीज करती है और इस तरफ को डिक्रीज करती है, जिसके बाद न्यूट्रल पीएच आ जाती है जो पानी की है। सो इस स्केल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ किस हद तक एसिडिक है। द pH of normal rain is approximately 5.6. This pH is a little acidic because of the mixing of carbon dioxide in it that forms carbonic acid in rain. Usually बारिश की जो आम pH है वो 5.6 होती है तो ये भी एसिडिक, लेकिन ये नेचुरली एसिडिक है क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है ही। तो जब भी बारिश होगी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उस बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगी, जिसकी वजह से बारिश के पानी की, रेन वाटर की स्लाइटली pH इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एसिडिक रेन जिसमें ये तमाम एसिड्स का सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है, ये इसकी pH को मज़ीद डिक्रीज कर देती है, जो कि 4.2 से 4.4 के बिटवीन होती है। सो pH रेंज इस हद तक एसिडिक हो सकती है एसिड रेन की। अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एसिड रेन के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस कॉज करते हैं क्योंकि एसिड इनक्रॉसिव इन नेचर होते हैं। ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की क्या वजह है? क्योंकि एसिड्स आर क्रोसिव इन नेचर। क्रोसिव मतलब कि ये किसी भी सरफेस को कोरोड कर सकते हैं, किसी भी सरफेस को ख़राब कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर कि तेज़ाब में अगर कपड़ा या जिल्द अगर तेज़ाब को लगे तो वो जल जाती है, क्यों? वो इसी वजह से है कि ये इनकी नेचर क्रोसिव होती है। दिस रेन रिड्यूसेस द pH ऑफ ग्राउंड वाटर। अब जैसे ही एसिड रेन ग्राउंड के पानी में जाएगी, रिवर्स में फॉल करेगी, ओशन वाटर में फॉल करेगी, पोंड में या किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में फॉल करेगी, वो उसकी pH को इंक्रीज कर देगी क्योंकि इसकी अपनी pH बहुत ज़्यादा है। इट ऑल्सो पोल्यूट्स द वाटर। दिस रेन गेट्स मिक्सड विद द फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिड्यूसेस द बायोडाइवर्सिटी। और चूँकि लाइफ फॉर्म्स जैसे कि फिश वो या दूसरी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो इतनी हाई pH पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उनका डिके स्टार्ट हो जाएगा, उनकी डेथ होने लगेगी। The animals find it difficult to breathe in this water and feel suffocated. This leads to their deaths. This can be an alarming situation for aquatic life. Ultimately, जब aquatic life suffer करेगी, तो उनकी ecosystem को disturbance होगी. So, overall ecosystem will be disturbed. दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटेक द एसिडिक वाटर इनसाइड द बॉडी दैट रिजल्ट इनटू रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब वही पोल्यूटेड वाटर अगर ह्यूमंस इनटेक करेंगे, एनिमल्स या प्लांट्स को दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी का pH भी डिस्टर्ब होगा और उनमें भी बहुत सी बीमारियां जैसे कि एस्थमा वगैरह उनमें भी आती चली जाएंगी। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है द एसिड रेन डिटीरियोरेट्स द ट्रीज बाय रिमूविंग देयर प्रोटेक्टिंग लेयर। आपको पता है कि ट्रीज के सरफेस पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, वैक्सीक्यूटिकल। एज अ रिजल्ट द टॉक्सिक केमिकल्स एंटर इनसाइड द ट्री एंड डिस्ट्रॉय देम। और जब वो लेयर रिमूव हो जाती है तो एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है लीफ के स्ट्रक्चर के साथ या स्टेम के स्ट्रक्चर के साथ। जैसे ही एसिड पार्टिकल्स ड्राई डेपोजिशन की सूरत में लीव्स या ट्रीज के अंदर चले जाते हैं तो वो उसको केमिकली स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली प्लांट्स भी
बीमारियों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। द एसिड रेन ऑल्सो रिड्यूसेस द एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड बफर्स फ्रॉम द सोइल। अब एसिड रेन चूंकि इटसेल्फ एसिडिक है, इसकी केमिकल नेचर एसिडिक है, तो ये जहां जहां जाएगी उस जगह की पीएच को इंक्रीज करेगी, उस जगह की पीएच को, नेचुरल बैलेंस को या नेचुरल बफरिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। बफर का मतलब है कि ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक, बल्कि ये न्यूट्रल किस्म की फॉर्म है और ये रेजिस्ट करता है किसी चीज को एसिडिक या बेसिक होने में। लेकिन पीएच एसिड रेन की वजह से ये नेचुरल मटेरियल्स भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली जमीन की फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है। एसिड रेन रिमूव्स द मिनरल एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल दैट इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। मिनरल्स को रिमूव कर देती है एसिड रेन, उनके साथ मिलकर उनके नए कंपाउंड्स बना लेती है। Acid rain leads to the surface corrosion of buildings and materials. It is responsible for the deterioration of marble and limestone buildings. Acid rain, acids जब मार्बल के साथ मिलेंगे, लाइमस्टोन के साथ मिलेंगे, तो ये उनकी भी corrosion कर देगी, उनके सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाएगी और सरफेस को ख़राब करना शुरू कर देगी। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं एसिड रेन के। आपने देखा कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट वाटर बॉडीज़ पे है, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म डिस्टर्ब होती हैं, सिर्फ हमारे बहुत से मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज़ वगैरह ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन लाइफ में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। सो एसिड रेन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ये तो था एसिड रेन के बारे में। अब आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप सबसे पहले करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 2 से, जो आपको मिलेगी पेज 60 पे और पेज 61 पे। फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ के आपने राइट आंसर फाइंड करना है। पहला सवाल आप सॉल्व करेंगे। द पीएच ऑफ एसिडिक रेन इज अप्रॉक्सीमेटली। एसिड रेन की पीएच आपने बतानी है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। इसके बाद आप आ जाइए पार्ट बी में, नेक्स्ट पेज 61 पे। टेस्ट एक्सरसाइज 2 का यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ एसिड रेन। आपने बताना है ब्रीफली कि एसिड रेन क्या होती है। रिव्यू एक्सरसाइज खोलें 61 पेज पे, तो यहाँ से पहला पार्ट है, पार्ट ए है एमसीक्यूज़ के बारे में। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एसिड रेन विल बी अ मेजर प्रॉब्लम इन, कहाँ पे होगा एसिड रेन, किस जगह पे मेजर प्रॉब्लम है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, एंटार्क्टिक रीजन्स में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में या फिर हर जगह। अगर आपने लेक्चर को अटेंटिवली अटेंड किया है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड आइडेंटिफाई इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपने कॉजेज, फॉर्मेशन बतानी है कि एसिड रेन कैसे बनती है और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। अपना समर पैक देखिए पेज 46 पे। यहाँ से आप अपना होमवर्क सॉल्व करेंगे, एक्टिविटी सॉल्व करेंगे पेज 4.6। 3 तस्वीर आपको दी गई हैं, इन तस्वीर को आपने गौर से देखना है, इन्हें समझने की कोशिश करनी है और जो दिए गए क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट मैसेज आर दीज कार्टून्स कन्वेइंग। ये तमाम कार्टून्स से आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं ये कार्टून। आपने एक एक या दो जुमलों में इन तीनों कार्टून्स को एक्सप्लेन करना है। इज़ इट रियली परसुएसिव, क्या इन तीनों कार्टून्स ने आप पे कोई असर किया है, मतलब आपने क्या फील किया है इन कार्टून्स को देख के, क्या हमारी एनवायरनमेंट इसी तरह से ख़राब हो रही है या नहीं। ड्रॉ अनदर डायग्राम पोस्टर डिपिक्टिंग द ग्रेवियंस ऑफ एसिड रेन एंड अटैच इट विथ योर वर्क समर पैक। आपने क्या करना है कि इसी तरह का एक पोस्टर डिज़ाइन करना है जिसमें एसिड रेन की ग्रेवियंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, यानी आपने ये शो करना है अपने पोस्टर में कि एसिड रेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए या लाइफ के लिए किस हद तक ख़तरनाक है, और उसको अपने समर पैक के साथ अटैच करके स्कूल में डिपॉजिट करना है। इसके बाद आ जाइए पेज 53 पे। पेज 53 पे आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पीएच ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन की पीएच हमने डिस्कस की थी, वो आपने बतानी है और उसकी रीज़न बतानी है कि आपका चूज करदा आंसर क्यों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। द ऑक्साइड दैट मेक रेन एसिडिक आर। रेन को एसिडिक बताने वाले ऑक्साइड्स कौन से हैं, क्या वो सल्फर के हैं, नाइट्रोजन के हैं, सोडियम के हैं या फिर ए और बी दोनों के हैं। यहाँ तक हमने अपना टॉपिक एसएलओ अचीव कर लिया है। आई होप कि आप भी अपने टॉपिक को, एसिड रेन को अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्सन तक अल्लाह हाफिज़।